امریکہ ایران مذاکرات، برف پگھلے گی یا تناؤ برقرار رہے گا؟ نتائج پر دنیا کی نظریں مرکوز۔ آبنائے ہرمز کھولیں، ناکہ بندی ختم کریں، جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کیا جائے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ ایکسیوس کی رپورٹ میں دعویٰ، امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے، جس میں آئندہ کا راہ عمل طے کیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی معاہدہ صرف امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام اپنے ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے بہادری سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ امید ہے ایرانی قوم اس مشکل دور سے نکل آئے گی، خطے میں جلد امن قائم ہوگا۔ روس ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فتح ہوں گے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو، کہا ایران میں جن لوگوں سے ہم نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ مناسب اور کچھ نہیں۔ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ امید ہے ایران دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا۔ میں پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں 11 جہاز گرائے گئے، چین سے زیادہ مایوس نہیں ہوں۔ ایران کے معاملے میں نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو برطانیہ نے کہا کہ وہ جہاز۔ اسلام آباد کا دورہ انتہائی مفید رہا، حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مذاکراتی عمل میں کئی پیش رفت ہوئی ہے، تازہ ترین پیش رفت پر مشاورت ضروری تھی، اس لیے دوبارہ پاکستان گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کی خطے کی صورتحال، کشیدگی میں کمی پر گفتگو۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا جنگ کے خاتمے میں کردار قابل تحسین ہے۔ حکومت پاکستان، پاک فوج اور عوام سے اظہار تشکر۔ اسلام آباد کی عوام کی مہمان نوازی۔ شرح سود میں 1% اضافہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ نئی شرح سود 10.5% سے بڑھا کر 11.5% مقرر۔ سال 2024 کے تیسرے مانیٹری پالیسی اجلاس میں مہنگائی، تیل کی قیمتوں سے متعلق پالیسی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مارچ 2024 میں ملک میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی ہے۔ مارچ 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سے زائد سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ $174 ملین سرپلس رہا۔ نئی شرح سود کا اطلاق 28 اپریل 2026 سے ہوگا۔ فیڈریشن چیمبر نے شرح سود میں اضافہ مسترد کر دیا۔ سینئر نائب صدر FPCCI کا کہنا ہے کہ شرح سود میں 1% اضافہ توقعات کے برعکس ہے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ شرح سود کو کم کیا جائے۔ شرح سود میں اضافے سے ایکسپورٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اضافے کا فیصلہ واپس لے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے سینٹ پہ اختیار، PCB کا عوامی نمائندوں کو مالی تفصیلات دینے سے انکار۔ سلیکشن بورڈ اور عہدیداروں کی مالی تفصیلات خفیہ قرار دیتی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کے ساتھ جانے والوں کی فہرست بھی ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ۔ سینٹ کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کی پیشکش۔ PCB کا موقف ہے معلومات افراد کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق ہے، غیر ضروری تشہیر سیکیورٹی خدشات پیدا کر سکتی ہے۔ کھلاڑیوں اور ملازمین کی رازداری برقرار رکھنا لازم ہے۔ ٹرمپ پر حملے کے ملزم کور ٹامس پر آج فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ ملزم ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ منسوب تحریری دستاویزات کے مطابق تقریب میں موجود دیگر افراد اور ہوٹل کا حملہ آور کا ہدف نہیں تھے۔ ضرورت پڑنے پر ان پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا۔ کیلیفورنیا میں ایک مقام پر چھاپہ مار کر شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ووٹر ریکارڈ میں ملزم کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر نہیں ہوئی۔ کملا ہیرس مہم کو $25 عطیہ کرنے کا ذکر ہے۔ ملزم کا سابقہ پولیس ریکارڈ نہیں۔ مقامی اسپتال میں ملزم کا علاج جاری۔ وائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والا امریکی شہری انعام یافتہ استاد کول تھامس ایلن کو دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ بھی قرار دیا گیا تھا۔ میں نے بچوں سے زیادتی نہیں کی اور نہ ہی کسی جنسی جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ خاتون اینکر پر برہم۔ اینکر نے ڈنر حملہ آور کا منشور پڑھ کر سنایا جس میں ایپسٹین فائل سے متعلق جنسی جرائم کا ذکر تھا۔ صدر ٹرمپ نے تلملا کر کہا تم بہت خوفناک لوگ ہو، میرا نام ان سے جوڑا جا رہا ہے جن کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان الزامات میں مجھے بری کر دیا گیا تھا۔ وہ تمہارے دوست ہیں جو ایپسٹین فائلز میں ملوث تھے۔ تم ایک ذہنی بیمار شخص کا لکھا پڑھ رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں یہ نوٹ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اینکر نے کہا آپ یہ کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے؟ انگور اڈا میں افغان اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، متعدد پوسٹیں تباہ۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کے باعث فتنہ الخوارج کی در اندازی کی،
तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितनाल ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग की भरपूर मजम्मत, पाक फौज से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन, कहा कि कौम को पाक फौज की पेशवराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। कीमती पत्थरों की बरामदात बढ़ाने के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और बरामदात बढ़ाने के इम्कानात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल बिलखुसूस कीमती पत्थरों की दौलत से मालामाल है। इस शोबे में मकामी वसाइल को बुरोकार लाकर बरामदात में नुमाया इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के बाद बरामदात बढ़ाने के लिए जायमिल अमल तैयार किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म को मंसूबों की पेशरफ्त और तकमील के शेड्यूल से भी आगाह किया गया। वर्चुअल असासों पर शिकंजा सख्त, बगैर इजाजत सर्विसेज गैर कानूनी करार। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी। स्टेबल कॉइंस और ब्लॉकचेन सर्विसेज भी रेगुलेटरी दायरा कार में शामिल। किसी भी पायलट या मुआहदे के लिए पेश की मंजूरी लाजमी करार। गैर मशरूत शुदा मंसूबे कानूनन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इदारों को पहले PVARA से रजू करने की हिदायत। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और NOC के जरिए मंजूरी लेने का मशवरा। पाकिस्तान का ईरान को तजारत में सहूलत देने का फैसला। पाकिस्तान से किसी तीसरे मुल्क के लिए तजारत की इजाजत दे दी गई। वजारत तजारत के ट्रांसिट ऑर्डर के मुताबिक नोटिफिकेशन किसी तीसरे मुल्क रवाना की गई ट्रांसिट अशिया की नकलो हमल पर लागू होगा। ट्रांसिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुँचाई जाएंगी। पोर्ट कासम, खुजदार, तलबंदीन, तफ्तान, ग्वादर और तुर्बत के रास्ते हुक्मनामे का हिस्सा होंगे और शाह, पंचकोट, नाग, खुजदार, लकबास और नकंडी के रास्ते भी हुक्मनामे में शामिल। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने इक़दाम इलाकाई तजारत के फरोग के लिए अहम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। चीन के शहर चांगशा में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी शरीक हुए। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने में ताउन समेत ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। महकमा बल्दियात सिंध और लुशियन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान पहली मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान में अमराज क़ल्ब के शोबे में खिदमात पर चीनी डॉक्टर के लिए सितारा पाकिस्तान का एजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के डॉक्टर को सितारा पाकिस्तान का एजाज अता किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 9 रोज बाद रौनकें मुकम्मल बहाल। मामूलात जिंदगी मामूल पर आ गई। फैसलाबाद समेत रावलपिंडी के तमाम बस अड्डे खुल गए। कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल। ताजरों का कारोबार बंद होने पर नुकसानात के इजाले का मुतालबा। इस्लामाबाद में रेड जोन के इतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म। आईनी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफातर भी खुल गए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बायस इन इलाकों को बंद रखा गया था। पानी पर बड़ा तनाज़ा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। केपी हुकूमत ने पंजाब से 1947 से अब तक के पानी के बकायाजात मांग लिए हैं। केपी हुकूमत ने गलियात के पानी से मुतल्लिक विफाक और पंजाब को खतूत भेजे हैं, जिनमें पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए के बकायाजात मांगे गए। खत में कहा गया कि गलियात में पानी का बहरान है। मरी वाटर बोर्ड गैर कानूनी तौर पर गलियात से पानी तरसील कर रहा है। किसी मुआहदे और मुआवजे के बगैर गलियात से रोजाना 5 लाख गैलन पानी निकाल रहा है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर डूंगा गली में 20 लाख गैलन पानी के लिए वाटर टैंक की तामीर रोकी जाए। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता दोनों हुकूमतों में मुआहिदा तय करने में ताउन करे और मुतल्लिका तमाम चश्मों, आबिशारों और पानी के ज़खायर पर केपी का हक तस्लीम करके खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का दीदानी प्रोग्राम में 9000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। मज़ीद अफराद को शामिल करने, व्हील चेयर्स और दिगर मावन आलात की सफाई और सर्विसेज की भी सहूलत फ्राहम करने की हदायत। पंजाब भर में गदाकरों का डेटा और मैपिंग का सूली फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर वकार मेहदी की मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल। सेनेट में कानून साजी से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी ढांचे को मजीद फाल बनाने के लिए मौसर इकदाम करने पर जोर। बिलावल की तंजीमी नस्ब-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए सख्त हिदायत। वकार मेहदी ने बिलावल भुट्टो को कैंटोनमेंट बोर्ड के आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात, पानी की सेहत और इलाज, कानूनी दस्तावेजात और दस्तखत से रोके जाने और इंसाफ तक रिसाई में रुकावटों पर तफसीली तबादला ख्याल। आइंदा बजट, NFC अवार्ड, सूबाई हुकूक, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात पर गौर किया गया। कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक, अपोजिशन के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क़याम की भी हदायत। सुहेल आफरीदी ने सहाफ़ियों के लिए बिलासूद कर्जों की स्कीम लाने की हदायत करते हुए कहा, इक़दाम से सहाफ़ी खुद मुख्तार और बाइख्तियार होंगे और फ़राइज़ आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सकेंगे। बलोचिस्तान में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियात फराम, 69,000 डायलिसिस, 40,000 से ज्यादा कीमोथेरापी और 1,200 से ज्यादा रेडियोथेरापी सेशंस मुकम्मल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान के शहरियों की आसानी के लिए हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड करार दे दिया गया। बलोचिस्तान के अलावा मुल्क भर में बड़े और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। सोमालिया में कज़ाकों के हाथों पाकिस्तानी अमला यरकुमा समंदर में डूबती उम्मीदें, अहले खाना की आंखें अश्कबार। हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा। अहले खाना का कहना है कि पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाए। गवर्नर से निहाल हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहरी कज़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी। सिफारत खाना राब्ते में है। यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से भी राब्ता किया। मामले पर खामोशी नहीं बल्कि काम किया जा रहा है। मगवी शहरियों के अहले खाना लावारिस नहीं, हुकूमत उनकी देखभाल करेगी। पाकिस्तान में कलअदम या ममनुआ करार दी गई जमातों और उनसे मुंसलिक तंजीमों पर आजाद कश्मीर में भी पाबंदी आयद। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कलअदम जमातें इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। महाजरीन जम्मू और कश्मीर 1989 के लिए रिहाइश की तब्दीली से मुतल्लिक नई शिक शामिल की गई है, जिसके तहत कैंपों में मुकीम महाजरीन नई रिहाइशगाह पर वोट कास्ट कर सकेंगे। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। मेरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मस्मार। ऑपरेशन विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर निगरानी किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फ्राहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी राशि पर तामीरात या कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी हैं। हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल। आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहरी के गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने और डिपोर्ट होने पर फ्री कैन से जवाब तलब। कराची में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद। वकला का आईनी तरामीम, जजेस के तबादले और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का ऐलान। कन्वेंशन में सलमान अकरम राजा, हामिद अली खान, अली अहमद के, मुनीर ए मलिक, आबिद एस जुबैरी समेत मुल्क भर से वकला की शिरकत। अली अहमद ने कहा, ये ऐलान जंग मुल्क में बहुत जरूरी हो गया। आज इस मुल्क के सियासतदान पर शर्म आती है। वकला रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं ऐलान जंग की तायद करता हूँ, ये हमारे ज़मीर की आवाज़ है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक ने कहा, 26वें तरमीम के वक्त सियासतदान लोग एक्सपोज हुए थे। इन तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इख्तियारात का फैसला महफूज। दलाइल के लिए अटॉर्नी जनरल के तलब करने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास वैसे भी 24 घंटे हैं। जहां इतना कुछ करने लगे हैं तो 28वीं तरमीम में इख्तियारात का फैसला भी कर दें। अदालत ने सवाल उठाया कि हमारे सामने सवाल है कि गवर्नर, सदर, कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बलीज की जानिब से राय मांगने के अलावा क्या कोई राय नजरियाती कौंसिल दे सकती है? पंजाब असम्बली से कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल पर हुकूमत और अपोजिशन में नोक झोंक। अपोजिशन रुकन काजी अकबर की कम उम्र शादियों के बिल पर एतराज। हुकूमती खवातीन अरकान फट पड़े। वज़ीर इत्तलात ने कम उम्री में शादियों को ज़िंदगी के दौरान अमवात की बड़ी वजह करार दे दिया। उस्मा बुखारी का कम उम्री की शादी के हामियों को अपनी बच्चियां 9 और 11 साल में ब्याहने का मशवरा। समीउल्लाह खान ने कहा, 10 साल की बच्ची खानदान को चलाने की सलाहियत नहीं रखती। 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी में नहीं होगी। UAE, मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी यही कानून बनाया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास। बजट मामलात पर तनाज़ा। कायमा कमेटी खजाना को बजट से लाइल्म रखने पर ANP के अरबाब उस्मान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कहा कि आने वाले माली साल के बजट से ऐवान की नुमाइंदा कमेटी को बेखबर रखा जा रहा है। महकमा खजाना उससे पूरा सूबा चलता है। हुकूमती अरकान को इल्म है कि कमेटी कैसे चल रही है। हुकूमत की जानिब से बजट से मुतल्लिक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा।
मुतादिद बिल्स कमेटी में ज़ेर इल्तवा हैं, जवाब मिलने तक इजलास नहीं बुलाऊंगा। ऐवान और कमेटियों के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। मामले पर दोबारा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।